welcome everyone to our today's webinar. I am Advocate Sneha Jain and we at Insights Bharat are back again with another webinar on an interesting and important topic. The topic for today's webinar is Daughters' Right in Ancestral Property, reiteration of Supreme Court on right to equality. Shackled at home, deprived of their rights in society, and subjected to gender bias at the workplace, women have borne the brunt of being termed, considered, labeled as the weaker sex throughout history. Though the skew in rights and treatment hasn't quite corrected itself, women are possibly in a better place today than before because the law does its best to be fair and neutral to gender and other differences. One of the examples of this is the latest judgment of the Honorable Supreme Court in favor of daughters in the matter of Vinita Sharma versus Rakesh Sharma. Although the law has been changed, making daughters co-partners in the family property, a lack of awareness and a deep-rooted patriarchal notion of property inheritance in this society remains a challenge. This recent judgment corrected the historical wrongs against women while upholding the principle of equality in the Constitution. Today's webinar of Insights Bharat is an attempt to create awareness as severe injustice may arise in its absence. Knowledge of the law and your rights ensures that you are not a victim of injustice. To discuss the background of the recent judgment of the Honorable Supreme Court and the future implications of it, we have with us today our honored speaker, Professor Bibha Tripathi Madam, who is a professor of Faculty of Law of one of the most prestigious university in the world, that is Banaras Hindu University. Before we move forward with our today's session, I have few pointers for our participants. Participants are requested to keep their mic on mute. If any participant has any questions for our speaker, they may drop the same in the chat box and same will be taken up during the question answer round. Now, without further ado, I would like to invite my co-host, Advocate Karan Shilke, to welcome and introduce our honored speaker, Professor Bibha Tripathi Madam. Thank you, Sneha ma'am. It is an honor for me to introduce our today's esteemed speaker, Professor Dr. Bibha Tripathi. Ma'am, your achievements are manifold, which cannot be narrated in a few minutes. Ma'am, you did your LLB, LLM, and PhD from the prestigious Banaras Hindu University. You are currently a professor at the School of Law of Banaras Hindu University. Ma'am, your areas of special interests are feminism and legal status of vulnerable classes. Your role in the Law School of Banaras Hindu University has been significant in providing maximum judges, officer, advocates to our country. You stood first in all your exams and received national and UGC merit scholarships. You also have more than 19 years of experience in teaching and have also authored 3 books and several articles revolving around gender equality. Ma'am, you are also the first lady professor of Faculty of Law at Banaras Hindu University in its glorious history of 100 years. You are also recipient of many awards such as President of India, Dr. Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Bharat Jyoti Award. Ma'am, you are a member of Women Grievance Cell, Legal Cell and Residential Accommodation Committee of Banaras Hindu University. You are also a member of Academic Council of DSNLU Vishakhapatnam. Ma'am, you are a role model for all the women who want to make a mark in their life by breaking the stereotype and one of the best person to speak on the topic of daughters' property right and right to equality. We welcome you, ma'am, and I'm sure your insights on this topic will be enriching for all of us in our today's webinar brought to you by Insights Bharat. Over to you, ma'am. थैंक यू करण, थैंक यू स्नेहा। आज सबसे पहले तो मैं इनसाइट भारत की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और ये सिद्धि विद्या ने जो इनिशिएटिव लिया है कि हम विधिक जागरूकता फैलाएं, समाज को जागरूक करें, तो ये बहुत नेक पहल है कि हम समाज और विधि के क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आप लोगों ने मुझे अपने इस पहल का हिस्सा बनाया है, मुझे इसके साथ जोड़ा है। इसके लिए मैं इनसाइट भारत की पूरी टीम की बहुत आभारी हूँ। और आज जो विषय मुझे दिया गया है वो विषय है कि जो डॉटर्स को संपत्ति में अधिकार दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय हाल में दिया गया है उसने कैसे समता के अधिकार की पुनरावृत्ति की है, पुनः उसको कैसे मान्यता दी है। लेकिन इस विषय पर बात करने के साथ जो सबसे बड़ी बात आती है कि हम इसके पृष्ठभूमि में जाएं और पृष्ठभूमि में जाते हैं तो महिलाओं की स्थिति पर चर्चा प्रारंभ होती है। महिलाओं की स्थिति का समाज के साथ और कानून व्यवस्था के साथ क्या संबंध है, यह देखना एक बड़ा प्रश्न आता है, क्योंकि
विधि में बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन उन प्रावधानों का एक महिला अपने हितों के लिए किस प्रकार प्रयोग कर पाती है, ये एक दूसरा प्रश्न हो जाता है। और जब भी समाज और विधि का प्रश्न उठता है तो एक बात आती है कि हमारा समाज प्रगतिशील हो रहा है या हमारी विधि प्रगतिशील है। जब भी प्रोग्रेसिव लॉ होता है तो समाज को बदलने का प्रयास करता है, और समाज बदलता है, लेकिन उसके बदलाव की गति बहुत धीमी होती है। बहुत धीमी गति से रुक रुक कर वह इस बदलाव को स्वीकार कर पाता है। लेकिन इसके विपरीत जब समाज चाहता है कि विधि बदले, तो वो समाज बहुत तेजी से बदल रहा होता है। और इस पृष्ठभूमि में जो एक टैग लाइन आज के विषय के साथ दी गई थी, वो थी कि इंश्योर इनहेरिटेंस नॉट डावरी, यानी उनको संपत्ति में विरासत के लिए हम सुनिश्चित करें और दहेज की कोई ऐसी बात ना करें। ये क्यों ये सारी चीजें हुई, इसकी इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, इस पर जब हम आते हैं तो देखते हैं कि महिलाओं को समाज में जो दोयम दर्जा प्राप्त है, उसका एक प्रमुख कारण है उनकी अशिक्षा की स्थिति, और दूसरा उनकी आर्थिक पर निर्भरता। जब तक वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं होती, आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती, उनकी इस समाज में सदैव पर निर्भर की रहती है, वो दोयम दर्जे की नागरिक ही कही जाती हैं। और 1956 में हिंदू विधि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। हिंदू उत्तराधिकार को लेकर के विधियों को सबसे पहले संहिताबद्ध करने की कोशिश की गई थी। और जब ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में अधिनियम को बनाया गया, तो वहां पर एक प्रावधान आया कि हमने सर्वाइवरशिप के कॉन्सेप्ट को डाइल्यूट किया। वहां पर ये बात आ गई कि यदि कोई व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी है, यदि बिना संपत्ति का वसीयत किए हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसने अगर अपने पीछे कोई महिला क्लास 1 हेयर को छोड़ा है, तो वो उस संपत्ति में अधिकार मांग सकती है, और इस तरह से उसकी पत्नी, माता या पुत्री को अधिकार प्राप्त था। लेकिन ये स्थिति कार्य रूप में परिणित नहीं हो पा रही थी, और जब वो वसीयत कर सकता था तो अपनी वसीयत में वो बराबर का हिस्सेदार अपनी बेटी को बना सकता था, लेकिन वो नहीं ऐसा होता था, क्योंकि ये जो पितृसत्ता है, इसकी जड़ें समाज में बहुत गहरे तक जुड़ी हुई है। इससे हर व्यक्ति प्रभावित है। पिता को ही ये नहीं समझ आता था कि वह अपनी पुत्री के साथ ही पूरी तरह से समानता का व्यवहार नहीं कर पा रहा है, इसी पितृसत्ता की वजह से। और इसलिए जब दहेज की बात आती थी, तो दहेज का कॉन्सेप्ट ये था कि पहले हिंदू विवाह में, हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह को एक संस्कार माना जाता था, और प्रथा ये थी कि भाई आभूषणों से सुसज्जित करके आप कन्या को दान दे दीजिए। तो कन्यादान की विषय वस्तु है कि नहीं, यह एक दूसरा विमर्श है कि हम कन्या को ही दान दे रहे हैं। दान तो वस्तुओं का होता है, लेकिन चूंकि हिंदू विधि में संस्कार के तहत ये संकल्पना चल रही थी, तो अब धीरे धीरे इसका स्वरूप विकृत होने लगा, ये और विकृत रूप में सामने आने लगा, क्योंकि वो जो महिला थी, वो एक तो उसकी शिक्षा का स्तर पूरा नहीं था, दूसरे समाज में उसको अपना स्थान नहीं मिला हुआ था। इसलिए दहेज की ये जो प्रथा थी, धीरे धीरे एक कुप्रथा में बदलती चली गई, और महज 5 सालों के अंतर पर एक अधिनियम हमारे पास आता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जिसमें दहेज का देना और लेना दोनों ही अपराध कर दिया गया। अब जो पिता दहेज देता था, उसका जिस लड़की को परिवार में ब्याहता था, उस परिवार के साथ उस लड़की का कभी अनुकूलन नहीं हो पाता था, क्योंकि वो उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाती थी। उसे लगता था इन लोगों ने हमारे यहाँ दहेज की मांग की, और इस स्थिति में एक बहुत बड़ी समस्या आती थी। और धीरे धीरे ये भी देखा जाने लगा कि बहुत सी महिलाओं के साथ दहेज के नाम पर अत्याचार भी हो रहे थे। फिर स्त्रीवादियों को लगा कि कानून कड़े होने चाहिए, और उन्होंने दहेज, हत्या, क्रूरता जैसे अपराधों को भारतीय विधि में शामिल करवाया। एक तरफ यह प्रयास चल रहा था, दूसरी तरफ लोगों को कुछ ये एहसास भी हो रहा था कि कुल मामला जब संपत्ति से जुड़ा हुआ है और गिफ्ट से जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना वो महिला जो संपत्ति जिस घर में पैदा हो रही है, उस घर से उसे कुछ संपत्ति मिले और वो उसको विरासती अधिकार सुनिश्चित हो।
तब लोगों ने ये कहा कि भाई इंश्योर इनहेरिटेंस नॉट डावरी। मधु किश्वर जी इस पे बहुत आगे आई और उन्होंने बहुत सारा सामाजिक जागरूकता का काम किया, और इस बीच में राज्य स्तर की विधियों ने अपने में परिवर्तन प्रारंभ कर दिया था। सबसे पहले असम में परिवर्तन आया और धीरे धीरे अन्य राज्यों ने भी इसमें परिवर्तन किया, लेकिन चूंकि केंद्रीय स्तर पर परिवर्तन नहीं हो रहा था, इसलिए 15वें विधि आयोग को यह दायित्व सौंपा गया कि आप इस विषय पर मंथन करिए और जो भी सुझाव हो उसे प्रस्तुत कीजिए। तो विधि आयोग ने 174वीं रिपोर्ट के माध्यम से कुछ सुझाव प्रस्तुत किए, लेकिन मैंने जैसा कहा, जैसे समाज को बदलना कठिन होता है, विधि निर्माताओं का भी बदलना उतना ही कठिन होता है। विधि आयोग के लोग विधि का निर्माण करने जा रहे थे, लेकिन वहां पर उन्होंने विवाहित महिलाओं और अविवाहित महिलाओं के बीच का विभेद बरकरार रखा। और ऐसी स्थिति में जब 2005 का संशोधन अधिनियम आता है तो वो काफी और समृद्ध होकर के सामने आता है और वो महिलाओं को जन्म से सहदायिकी मानने की बात करते हुए अन्य बातों पर गौर करता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने पूरी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक अपना पीपीटी बनाया है और उसके माध्यम वर्तमान तक आकर के इस कानूनों की स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी। ये मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? हेलो जी मैम, दिख रही है। ठीक, तो ये देखो, ये पहला जो तुम्हारा विषय है कि डॉटर्स राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, रीइटरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू इक्वेलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने समता के अधिकार को मुहर लगाई है, वो समता का अधिकार जो संविधान के अस्तित्व में आने के साथ सभी व्यक्तियों को मिल गया था। यानी 1950 में हम समता का अधिकार प्राप्त कर चुके थे। आज 70 वर्षों बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को उस पर मुहर लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब है कि बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ है, और इसीलिए मैंने बहुत चुन करके इस पीपीटी की डिजाइन रखी है। एक पर्दा बना दिया है कि पर्दे के बाहर की जो बातें हैं वो समाज में कितनी तेजी से फैलती हैं कि ये अधिकार है, वो अधिकार है, लेकिन पर्दे के भीतर जिसको वो अधिकार देना है और जिसको लेना है उनके बीच में क्या हो रहा है ये सुनिश्चित नहीं हो पाता है। और वो पर्दे के भीतर जब ये सच्चाई पहुंचेगी, जब स्वीकार्यता बढ़ेगी, तभी हम कह पाएंगे कि वास्तव में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये सही है और सही मायने में लोगों के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मेरी स्लाइड थोड़ी आगे बढ़ गई है, लेकिन मैं आपको पीछे की बातों को बताना चाहूंगी कि इसमें सबसे पहले बताया गया था कि हिंदू कौन है। तो हिंदू में ये बताया गया कि जो भी अपने धर्म का पालन करता है वह हिंदू कहा जाता है। और हिंदू वीर शैव लिंगायत आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज का कोई भी अनुयायी हिंदू माना जा सकता है। इसमें सिख, जैन, बुद्ध सभी शामिल है। लेकिन केवल इतना अगर आप समझने के लिए कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और ईसाई है, जीव धर्म को पालन करने वाला है, तो वह हिंदू नहीं है, यानी उस पर यह विधि लागू नहीं होगी। और दूसरी बात आती है कि हिंदू विधि मुख्य रूप से दो भागों में, दो संप्रदायों में बटी हुई है। एक है मिताक्षरा संप्रदाय और दूसरा है दाय भाग संप्रदाय। मिताक्षरा संप्रदाय को ही इस हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के द्वारा परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। और ये जो मुख्य समय है जो कि 1956 से लेकर आज तक की तारीख में लैंडमार्क ईयर है जाते हैं, वह 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट तो था ही, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि एक क्लास 1 ईयर को इनहेरिटेंस का राइट ऑलरेडी था और वो अपने पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांग सकती थी, लेकिन जब वो निर्वसित ही मरता था तो भी उसका सुनिश्चित किया जा सकता था। परंतु ये सारी बातें शायद केवल कागज पर थी, उसको अमली जामा पहनाना मुश्किल हो रहा था और इधर संशोधन की बात लगातार चलती जा रही थी।
तो 2005 में हमारा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम आता है और ये इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आता है कि अब एक बच्ची को जन्म से ही हम सहदायिकी मानेंगे और वही अधिकार होंगे और वही दायित्व होंगे जो एक पुत्र के अधिकार और दायित्व होते हैं। इसके बाद दूसरी जो चीज है कि सक्सेशन, हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जिस सूची का विषय होता है उसमें विधि बनाने की अधिकारिता उन्हीं लोगों को होती है। क्योंकि ये समवर्ती सूची विषय है तो इससे ये कहा गया कि इससे राज्य भी विधि बनाए और केंद्र भी विधि बना सकता है। अब राज्यों में मैंने आपको कहा कि केरल ने जब इसको सबसे पहले एबॉलिश किया था इस व्यवस्था को, तो 1975 में उन्होंने हिंदू संयुक्त परिवार प्रथा को ही समाप्त कर दिया था और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी समय समय पर एक सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया और संशोधन किए गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो विभेद विवाहित महिला और अविवाहित महिला के बीच का था वो अभी भी चला आ रहा था। तो ये कहा गया कि अब जब हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम केंद्रीय विधायन के रूप में पास हो चुका है, तो जितने भी राज्यों ने अब तक जो भी संशोधन किए हैं, अगर उसमें कोई भी इनकंसिस्टेंसी है, यानी उनके बीच में अगर कोई विभेद है, तो फिर केंद्रीय विधायन ही प्रिवेल करेगा। तो इसका तात्पर्य हो गया कि अब वो सभी राज्य जिसमें विवाहित और अविवाहित महिला का विभेद था वो नहीं माना जाएगा और सभी को एक साथ एक समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। फिर ये दूसरा जो संशोधन अधिनियम 2005 की अन्य प्रमुख बातें थी कि इसमें एक केवल धारा 6 में ही परिवर्तन नहीं किया गया था, इसमें धारा 4 की उपधारा 2 को हटाया गया था, इसमें धारा 23 और 24 को हटाया गया था और धारा 30 में भी संशोधन किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन धाराओं में संशोधन के माध्यम से हमने स्थितियों को स्पष्ट करने की कोशिश की थी और कहा कि अब विवाहित और अविवाहित महिला के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा और दोनों ही पुत्र और पुत्री सहदायिकी होंगे, जन्म के आधार पर होंगे, दोनों के अधिकार समान होंगे, दोनों के कर्तव्य समान होंगे। कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता है कि जो पायस ऑब्लिगेशन केवल सन का होता था वो पुत्री का नहीं होगा। नहीं, पुत्री को भी अब समान दायित्वों का निर्वहन करना होगा। यहाँ तक कि अगर पैतृक संपत्ति का कोई ऋण बैंकों के ऊपर देय है और वो संपत्ति का इंश्योरेंस नहीं हुआ है, तो वो जो ऋण है वो भी पुत्री को समान रूप से अदा करना पड़ेगा। तो इन चीजों को भी समझना होता है कि हम केवल कर्तव्य अधिकारों की बात नहीं कर सकते, अधिकार के साथ कर्तव्य हमेशा जुड़े रहते हैं, हमें उनका अनुपालन करना पड़ता है। और एक दूसरा अधिनियम भी मैं आपको बताऊं जो मेंटेनेंस ऑफ एल्डरली पीपल और सीनियर सिटीजन एक्ट है, वो भी ये कहता है कि सभी का वृद्ध जनों को पालन करने का, उनका भरण पोषण करने का समान अधिकार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो 1956 का था, उसमें एक तलाकशुदा महिला, एक परित्यक्त महिला, एक विधवा महिला ही केवल निवास स्थान में रहने का मांग कर सकती थी। यानी जब वो प्रताड़ित हो रही है या जब उसके पति के देहांत हो गया है या जब उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, ऐसी स्थिति में वो अपने पैतृक निवास में आकर के और उसमें रहने की मांग कर सकती थी। लेकिन आज की तारीख में इस चीज को खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी महिला बहुत अधिकार के साथ अपने पैतृक निवास में रहने का अधिकार मांग सकती है, यहाँ तक कि वह उसके विभाजन का भी अधिकार मांग सकती है, क्योंकि जब हम उस संपत्ति के संयुक्त स्वामी हो जाते हैं तो हमारे अधिकार बराबर हो जाते हैं, हम उसमें रहने, उसको विभाजित करवाने की भी मांग कर सकते हैं। दूसरी तरफ बात आई कि हमारा जो कृषि भूमि है, बहुत जैसे मैं कहती हूँ कि जब हम महिलाओं की स्थिति पर बात करते हैं तो हमारी दृष्टि बहुत व्यापक होनी चाहिए, दायरा बहुत विस्तृत होना चाहिए, क्योंकि हम अपने आसपास की समृद्ध और आत्मनिर्भर महिलाओं के संदर्भ में ही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। हम उस ग्रामीण समाज की महिला की भी बात कर रहे हैं जिसका पूरा जीवन कृषि से होने वाली आय पर निर्भर करता है। कहा भी गया है कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। तो अब ये आ गया है कि जो जमीन जिसकी है और जो जमीन का हिस्सा ले वो सारे दायित्व निभाए। इस तरह से भी हम अपनी बातों को कह सकते हैं। और धारा 30 में संशोधन किया गया
कि हमको समान अधिकार मिल गया कि हम अपनी संपत्ति का व्ययन कैसे करेंगे, यानी हम अपनी संपत्ति को वसीयत करके कि जिसको चाहें उसको अपने हिसाब से बांट सकते हैं। ये अधिकार भी पहले नहीं था, जो इस संशोधन अधिनियम के द्वारा उपलब्ध कराया गया। तो आया दो महत्वपूर्ण जो निर्णय आए कि प्रकाश वर्सेस फूलवती का निर्णय 2016 में आता है और दनम्मा वर्सेस अमर का निर्णय 2018 में आता है। इन दोनों निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा निर्णित किया गया था और यहीं पर कुल विवाद था। प्रकाश वर्सेस फूलवती के केस में कहा गया कि ये जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम है आखिर वो लागू कब से होगा। 2005 में 9 सितंबर 2005 को वो अस्तित्व में आता है। 20 नवंबर 2004 को पहली बार राज्यसभा से उसको विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, यानी ये दो प्रमुख तिथियां थी। तो कहा गया कि जिस दिन ये अस्तित्व में आया शैल कम आफ्टर द पर्टिकुलर डेट, यानी ये इसके बाद अस्तित्व में आएगा, 9 सितंबर 2005 के बाद अस्तित्व में आएगा। तो इसका भविष्य लक्षी प्रभाव होगा। और इसका परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि पिता और पुत्री दोनों को ही 9 सितंबर 2005 की तारीख पर जीवित रहना चाहिए और वो दावा 2005 के बाद दाखिल करेंगे और तब संपत्ति में पुत्री को अधिकार मिलेगा। अब ये जो बात आई ये इसलिए आई कि पुरानी व्यवस्था के तहत जो कुछ भी हो चुका है उसको डिस्टर्ब न किया जाए और आगे से हम चीजों को लागू करें। लेकिन ठीक इसका विरोधी निर्णय 2 वर्ष बाद दनम्मा के केस में आ जाता है, जिसमें न्यायालय कहती है कि नहीं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं बल्कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब हुआ भूत लक्षी विधायन, यानी हम दावा तो 2005 के बाद करेंगे लेकिन पिता का 2005 की तारीख में जीवित होना जरूरी नहीं है। ये पिछली तारीख से, यानी जब भी वो बच्ची जन्म लेती है और ये जन्म का अधिकार है तो पिता के जीवित होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये अधिकार की मांग कर सकती है। तो ये जो दोनों निर्णय थे इसके बीच में अब प्रश्न उठा कि भाई कोई क्लेम करेगा तो उसके साथ क्या होगा, कौन सा निर्णय प्रभावी होगा। तो एक बड़ी बेंच बैठी और उस बड़ी बेंच ने निर्णय दिया। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का केस आया और जिसकी चर्चा स्नेहा ने भी प्रारंभ में की थी कि ये अभी 11 अगस्त 2018 को निर्णित होने वाला मामला है और इसमें इस कॉन्ट्राडिक्शन को, कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई और कहा गया कि ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन है वो धारा 6 के संदर्भ में है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि दिल्ली हाई कोर्ट में जब विनीता शर्मा का मामला चल रहा था तो वहां की जो न्यायाधीश थी प्रतिभा एम सिंह, तो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह एक महिला थी और उन्होंने ये निर्णय दिया कि ये यहाँ पर उसको हम रिट्रोएक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं करेंगे। हाँ, ये दोनों निर्णय उन्होंने दोनों, तो इस विवाद को निपटाने के साथ इसमें ये 7 अन्य मामले भी थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इन 7 मामले जो लंबित हैं पहले से उनका भी इसी निर्णय के साथ निर्णय हो जाए। फिर आया कि हम ना तो प्रोस्पेक्टिव कहेंगे ना रिट्रोस्पेक्टिव कहेंगे बल्कि रिट्रोएक्टिव शब्द का इस्तेमाल किया गया। रिट्रोएक्टिव शब्द क्या होता है? पूर्व व्यापी विधायन, यानी पिता का 2005 की तारीख में जीवित होना जरूरी नहीं है, क्लेम हमेशा 2005 के बाद होगा, लेकिन जो संपत्ति ऑलरेडी विभाजित हो चुकी है, पंजीकृत विलेख आ चुके हैं, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, जिसमें प्रारंभिक डिग्री ही केवल हासिल हुई है उसमें पुत्रियां मुकदमा कर सकती हैं और अपने सहदायिकी अधिकार की मांग कर सकती हैं। यानी जो मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं उन मुकदमों में समानता के अधिकार की बात के तहत वो अपनी हक की मांग कर सकती हैं। ये मुख्य बातें इस निर्णय में कही गई। इसके बाद ये जो 3 शब्द थे इस पर बहुत चर्चा हो रही है, लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भाई प्रोस्पेक्टिव क्या है। तो प्रोस्पेक्टिव हमेशा वो होता है जबकि हम अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद लागू करते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव होता है जिसमें हम यहाँ तक कि अगर किसी में कोई अधिकार निहित हो चुका है पहले तो वो भी प्रभावित हो जाएगा।
और पूरा भूतलक्षी विधायन हो जाएगा और सारी चीजें एक नए तरीके से आएंगी। ये ज्यादा समस्या मूलक था, क्योंकि अगर किसी को संपत्ति ऑलरेडी मिल चुकी है तो कैसे आप उसमें अधिकार मांगेंगे, कैसे उसका निपटारा होगा, इसीलिए रिट्रोएक्टिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया। लेकिन न्यायालय को निर्वचन करने का अवसर तभी मिलता है जब विधायन में अस्पष्टता होती है, और इसी अस्पष्टता के कारण जब न्यायिक निर्वचन होते हैं तो बहुत से लोग उस निर्वचन को स्वीकार करते हैं और बहुत से लोग उस निर्वचन को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका ये कहना होता है कि शायद कहीं ना कहीं न्यायपालिका विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप कर रही है, इस प्रकार की बातों को कह के। तो इस यहाँ पर एक समाधान ये कहा जा सकता है कि समाधान ये निकाला जा सकता था कि यदि विधायिका ही ये इस बात को स्पष्ट कर देती कि वास्तव में ये जो अधिनियम अस्तित्व में आया है इसका हम इसको कब से लागू करेंगे, कौन इसके लिए वाद दायर कर सकता है, ये सारी चीजें अगर वहीं स्पष्ट हो जाती तो न्यायिक निर्वचन के इतने अवसर ना आते और इतना विवाद ना उत्पन्न होता, और लोगों में भी इसके बारे में एक्सेप्टेंस होता कि ठीक है, जो लेजिस्लेशन बना है वो इस तरह का है। लेकिन एक बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि ना तो कोई विधि अंतिम होती है, ना कोई निर्णय अंतिम होता है। विधि में भी समय के साथ परिवर्तन होते हैं, और जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं परिवर्तन, और उसी तरह से न्यायिक निर्णयों में भी परिवर्तन होते हैं। आज 2 जजेस की बेंच के निर्णय को प्रभावित करती है 3 जजेस के बेंच का निर्णय, और हो सकता है कि कल 5 जजेस की एक संविधान पीठ बैठ जाए और इस मुकदमे और इस तरह के मामलों का कुछ अन्य तरीके से भी निस्तारण कर दे। तो निश्चितता की स्थिति नहीं है, कभी भी कोई निर्णय अंतिम नहीं होता है। हाँ, हम धीरे धीरे समाज को इस बात के लिए तैयार जरूर करते हैं कि जो भी वस्तु स्थिति आएगी उसके अनुसार आपको अपना व्यवहार करना पड़ेगा और उन निर्णयों को मान करके अमल में लाना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज और भी मैं बता दूं कि लोग ये जो कोपासनरी प्रॉपर्टी है इसको समझने की बात करते हैं कि ये कोपासनरी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये पैतृक संपत्ति होती है जो किसी भी व्यक्ति को अपने पिता, दादा या परदादा से प्राप्त होती है। ये 3 पीढ़ियों तक चलती है, यानी जो कर्ता होता है उसके नीचे की 3 पीढ़ियों तक के लोगों को कोपासनरी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। एक दूसरी बात जो इस अधिनियम में आई और ये आपका जो निर्णय आता है उसमें भी इन बिंदुओं पर चर्चा करके इसे स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है, तो वो समझ में आता है कि मिताक्षरा संप्रदाय में दोनों ही बातों को मान्यता दी गई है। वो है प्रतिबंधित दाय और अप्रतिबंधित दाय। अप्रतिबंधित दाय क्या होता है और प्रतिबंधित दाय क्या होता है? इसमें कहा गया कि अनऑब्स्ट्रक्टेड चीजें जब होती हैं कि आपको कोई भी प्रतिबंध नहीं है, जैसे ही किसी व्यक्ति के पुत्र होता है, पौत्र होता है, प्रपौत्र होता है, पुत्री होती है, पौत्री होती है, प्रपौत्री होती है, तो जन्म से ही वह उस संपत्ति की अधिकारिणी हो जाती है। इसलिए धारा 6 अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज की बात करता है, वो आपको विरासत में बिना किसी प्रतिबंध के मिलता जाता है। और दूसरा ऑब्स्ट्रक्टेड या प्रतिबंधित दाय वो होता है जबकि किसी व्यक्ति के कोई या तो पुत्र पुत्री नहीं है और या तो उसका विवाह ही नहीं हुआ है, तो उसके पास संपत्ति है लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ है, तो उसके जीवन काल में कोई भी व्यक्ति उसकी संपत्ति का कोपार्सनरी नहीं हो पा रहा है। ये जो हेरिटेज है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है। जब वो व्यक्ति मरेगा तभी उसकी संपत्ति का विभाजन होगा। तो इसी ये जो एक विभेद था इसे भी स्पष्ट करना आवश्यक था। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण बात निर्णय की कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। यानी लोगों ने कहा कि अब अगर रेट्रोएक्टिव इफेक्ट है, जितने भी प्रारंभिक वाद दायर किए गए हैं उन सभी प्रारंभिक वादों में जो भी महिला चाहेगी कि वो संपत्ति में हिस्सा मांगे, वो पुनः अपना हक दायर करेगी, उसमें अपनी मांग करेगी, तो मुकदमों की संख्या बेतहाशा तरीके से बढ़ेगी। यहाँ तक कि बैंक वगैरह के भी मामले बढ़ेंगे, क्योंकि अगर संपत्ति में, जैसा मैंने पहले बताया, अगर ऋण वगैरह है तो वो भी लेने के लिए लोग प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे ये लीगल इम्प्लीकेशंस उसके देखे जाएंगे और
जिसको कहा गया कि ओरल पार्टिसिपेशन, पहले लोग क्या करते थे, कह देते थे भाई हमारी संपत्ति का विभाजन हो चुका है, तो ऐसे किसी भी मौखिक विभाजन को मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक कि आप इस मौखिक विभाजन को सिद्ध करने के लिए अपने पास एक कोई पुख्ता सबूत लेकर के नहीं आते हैं। तो ऐसे मौखिक विभाजन अमान्य हो जाएंगे, प्रारंभिक डिक्री अमान्य हो जाएगी, और केवल पंजीकृत विलेख, और वो भी जो कि आपने 20 नवंबर 2004 के पहले संपत्ति का निस्तारण कर दिया है, उसको ये प्रभावित नहीं करेगा। अन्य मामलों में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। फिर अब दूसरा एक दृष्टि, ये जो नया मतलब मैं ये कह रही थी कि जब भी कोई निर्णय आता है तो एक मूल्यांकन विधिक दृष्टिकोण से होता है, दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण से होता है। इस निर्णय में भी पैरा 70 में एक ऐसी बात सामने आती है जो कि इसके मूल्यांकन पर जोर देने की आवश्यकता को बताती है, क्योंकि इसमें वीरेश्वर मुखर्जी का केस था जिसमें कहा गया कि जब हम दत्तक ग्रहण में पुत्र को लेते हैं तो पुत्र को कोपार्टनर बना देते हैं। पुत्र मोह की संकल्पना, पुत्र के द्वारा किए जाने वाले संस्कारों की संकल्पना और मोक्ष प्राप्ति की संकल्पना से लोग इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि यहाँ तक की प्रथा थी कि आप पुत्र अगर आपके नहीं है तो आप दत्तक ग्रहण में पुत्र ले लीजिए, वो आपका कोपार्टनर बन जाएगा। लेकिन इस महिलाओं के संबंध में कहा गया कि पुत्री तो केवल जन्म से ही सहदायकी होती है, यानी दत्तक ग्रहण में अगर आपने किसी को लिया है, पुत्री बनाया है, तो वो को पार्टनर कभी नहीं होगी। वो पैतृक संपत्ति में दत्तक ग्रहण में आई हुई पुत्री हिस्सा नहीं ले सकती है। तो ये भी एक बात है जिस पर आगे चल करके विमर्श उठ सकता है और संशोधन की, परिवर्तन की भी गुंजाइश दिखती है। अब दूसरी बात आती है कि हम भाषा कैसी प्रयोग करते हैं। पुत्रियों के अधिकार समान हैं ये बताने के लिए केवल एक लाइन पर्याप्त है कि डॉटर्स राइट्स आर सेम एज दैट ऑफ अ सन। लेकिन हमने क्या कहा कि एज इफ शी हैड बीन अ सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, इतना हम उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे जैसे कि मानो उसका जन्म एक पुत्र के रूप में ही हुआ हो। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि पुत्र के रूप में, अरे वो पुत्री है तो पुत्री के रूप में उसका जन्म हुआ है और विधि ने उसको जन्म से ही समान अधिकार दे दिया है। तो इस लाइन की भी मेरे समझ से कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये निर्णय की लाइन नहीं है बल्कि ये विधायन की भी लाइन है। तो जैसा मैंने कहा, ना कोई विधायन अंतिम होता है ना कोई निर्णय अंतिम होता है। जब जहां जैसी परिस्थिति आती है, प्रश्न उठता है, उस पर सुधार की बात होती है तो उसमें सुधार किए जाते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा जो बात आई, जो सविता का एक पुराना केस कोट करते हुए न्यायालय ने कहा कि बेटी तो बेटी होती है ताउम्र के लिए और पुत्र तो पुत्र होता है जब तक कि केवल उसको वाइफ नहीं मिल जाती। मतलब ए सन इज अ सन अंटिल ही गेट्स अ वाइफ और डॉटर इज डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ। ये सुनने में तो बड़ा रिदमिक लग रहा है लेकिन इसके परिणाम ठीक नहीं है। क्यों हम ऐसा कहते हैं? एक कहीं किसी की पुत्री ही तो किसी पुत्र की पत्नी होती है, तो कैसे वो इतनी खराब हो सकती है कि पुत्र को केवल उसके विवाह तक ही पुत्र रहने दे, और कोई बेटी जो जाकर के किसी के घर में किसी की पत्नी होती है वो अपने बेटी के संदर्भ में पूरी जिंदगी बेटी रह सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये समाज की स्थितियों पर निर्भर करता है, ये हमारे और परिवार के संबंधों पर निर्भर करता है कि हम, और व्यक्ति विशेष के व्यवहार पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीजों में भी हम विभेद, अनर्गल का विभेद ना करें। अनर्गल किसी को ऊंचा और नीचा ना कहें। हर व्यक्ति समान है। अगर हम समानता की ही संकल्पना लेकर के चल रहे हैं तो इसमें भी हमारी दृष्टि व्यापक होनी चाहिए। और आगे की बाधाएं, जैसा कि लोगों के मन में चल रहा है कि ये निर्णय तो आ गया, अब आगे क्या होगा? तो आगे की राह जाकर के मुकदमा लड़े और अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगे, लेकिन उनके पति के द्वारा प्रेशर आता है
और जब वो जाती हैं तो पता चलता है कि नहीं, आप तो, आपके पिता का तो देहांत हो चुका है, इस समय के बाद आप मुकदमा नहीं कर सकती। यानी कानूनी दांवपेच में जब वो महिला फंसती है तो उसको एक हम लोगों के विधि में कहा जाता है कि लॉ इज नॉट ओनली ए टूल ऑफ स्ट्रगल बट ऑल्सो ए साइट ऑफ स्ट्रगल। मतलब कानून केवल एक विधि का यंत्र नहीं है, संघर्ष का यंत्र नहीं है, बल्कि ये स्वयं में ही संघर्ष कराने की स्थिति रखता है। और कानून हमेशा एक अच्छे परफेक्ट विक्टिम की तलाश करता है। यानी वो कौन सी स्त्री होगी, कौन सी महिला होगी जिसे हम परफेक्ट कहेंगे, जिसने कभी भी किसी भी कानूनी अधिकार का पालन ना किया हो। क्योंकि जिस दिन आपने अपने अधिकार का पालन किया, उस दिन लोगों को लगेगा कि आप बहुत तेज हैं, आप बहुत सक्रिय हैं, आप बहुत, आपके लिए और अन्य शब्दों का भी वो प्रयोग कर सकते हैं। कानून ने तो अधिकार दिया कि हम अपनी स्वेच्छा से विवाह कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्त्री स्वेच्छा से विवाह करती है तो लोगों को लगता है कि पिता माता को लगता है कि इसने तो मेरा नाम खराब कर दिया, उसने तो अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग किया। दूसरी स्थिति ये होती है कि जब वो तलाक का भी आधार है कि अगर नियम इतनी चीजें हैं और पति के साथ उसका बन नहीं रहा है, बहुत प्रताड़ित हो रही है, तो वो तलाक ले ले। तो तलाक लेने के बाद भी समाज तलाकशुदा महिला को ही प्रश्न के घेरे में खड़ा करता है, कटघरे में खड़ा करता है। तो ये सारी चीजें व्यवहारिक स्तर पर बहुत समस्या मूलक होती हैं। और मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहूंगी कि कभी कभी हमारे न्यायाधीश के द्वारा भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है कि हम ऐसी महिला है, इसी भारतीय महिला है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे ये व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। नहीं, हमें तो कानून के प्रश्न पर विचार करना है, उसके व्यवहार पर विचार नहीं करना है, उसकी पृष्ठभूमि पर विचार नहीं करना है। ये सब बातें भी समाज में फैलनी चाहिए और इनसाइट भारत के माध्यम से मैं इन बातों को भी फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। और जो अन्य बाधाएं हैं कि जैसा मैंने कहा कि अपने परिवार को ही नाखुश करना स्त्री के लिए उतना संभव नहीं है, क्योंकि जिस जगह वो विवाह करके जाती है वो परिवार का और वातावरण बहुत अनिश्चित होता है। जो तो स्त्री का पूरा जीवन ही अनिश्चित है, लेकिन वहां पर कैसी स्थिति होगी, कैसी नहीं होगी, ऐसे में वो अपने मायके को नहीं चाहती है कि वो मायका भी उससे छूट जाए और वो संपत्ति के अधिकार की मांग करे। यानी सामाजिक स्तर पर बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं जिससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कि अध्ययन के द्वारा आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में पुत्रियों को कहा जा रहा है कि आप एक हलफनामा दे दो और उस हलफनामा में आप अपने भाई के नाम संपत्ति को लिख दो कि हम संपत्ति में कोई रुचि नहीं रखते हैं, हम अपने परिवार में खुश हैं और ये संपत्ति हमारे भाई को दे दी जाए। तो इस तरह का हक त्याग जो दिया जा रहा है वो भी एक नई परंपरा की, ठीक है अब अधिकार तो कानून ने दे दिया तो हम एक दूसरा उसके साथ, जिसको कहते हैं कि हम दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं उससे बचने के लिए। तो ये भी स्थितियां आ रही हैं जो कानून के लिए और समाज के लिए पुनः एक प्रश्न खड़ा कर दिए कि तो स्त्रीवादी विचारकों ने इसमें कहा कि भाई अगर ऐसा कोई हलफनामा देती है तो कानून ये बन जाना चाहिए कि इनको हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये निश्चित तौर पर उसको बाध्य करके बनाया गया होगा, इसको कोर्स किया गया होगा और जो भी बात वो अपनी स्वेच्छा से नहीं करती है उसको हमको मान्यता नहीं देनी चाहिए। ऐसी भी चीजें लोगों के द्वारा मांगी जा रही हैं। यानी इस पर अभी स्पष्ट रूप से चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इस पर भी स्पष्टता आ सकती है। और दूसरी बात ने कहा कि पितृसत्ता की जड़ें गहरी होती हैं और कुछ प्रत्यक्ष पितृसत्ता तो हमें दिखाई पड़ती है जो समाज के लोगों के द्वारा व्यवहार में आती है, लेकिन जब अपने खुद के लोग, अपना पति, अपना बच्चा, अपने पिता जब इस तरह की गांठों को खोलता है तो बहुत समस्या आती है। फिर उस समय स्वीकार्यता का बड़ा प्रश्न उठता है। और आज के समय में मैं बताऊं कि जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है वो 2004 का है। मैंने उन वर्षों को अगर आप थोड़ा सा तुलनात्मक रूप में देखें तो 2005 का आपका अधिनियम है, 2004 का ये अधिनियम है और हम बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही रोक दे रहे हैं। यानी जिस परिवार में उसके सुरक्षा का पहला दायित्व था, वो पहला स्टेक होल्डर था, वहां तो वो उसने बच्ची को जन्म ही नहीं लेने दिया, तो जन्म के बाद अधिकार की कहाँ तक बात की जाए।
दूसरी स्थिति आती है इधर उसके ससुराल वाले पक्ष में कि हिंसा हिंसा एक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को हिंसक बनाती है। इसके लिए बहुत हद तक समाज की परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, उसका सामाजिकरण जिम्मेदार होता है। लेकिन जो इसमें वल्नरेबल क्लास है हमारा, महिला और बच्चे, वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते हैं। तो एक नया स्वरूप आ जाएगा कि अगर वो महिला नहीं चाहती है कि हम मांग करें तो उसके साथ इसी आधार पर जबरदस्ती हो जाती है कि नहीं तुम जाओ मांग करने, और ये एक क्रूरता का एक नया आयाम स्थापित करेगा। उधर जो डावरी डेथ की संकल्पना थी कि दहेज न लाने के कारण उसको जला दिया जाता था, अब हो सकता है कि संपत्ति के कारण उसके स्वयं के जन्म लेने वाले परिवार वाले ही उसके दुश्मन हो जाएं। ये कुछ ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं जो कि कभी समाज में देखी जा सकती हैं, और इन चीजों से बचने के लिए ही हमको प्रयास करना है कि हम ये चीजें मान स्वायत्त बनाना है, वो समाज के साथ अपने कदम कदम मिलाकर चल सके, इसके लिए उसे तैयार करना है। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पिता किसी लड़की का सपोर्ट करता है तो उसके लिए आसमान तक जाने की, सितारों से आगे निकलने की अवसर उपलब्ध होते हैं। वो कहीं भी जा करके कोई भी उपलब्धि हासिल कर सकती है। लेकिन अगर उसे अपने घर में ही सपोर्ट नहीं मिलता तब वो थोड़ी सी परेशान होती है। विधान है जिसमें थोड़ा सा विभेद हमें दिखाई देता है, वो है धारा 30 का। यानी धारा 30 में संपत्ति को व्ययनित करने का अधिकार एक महिला को दिया गया है। अपने जीते जी यदि उसने संपत्ति का वसीयत कर दिया है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो निर्वसियत मरती है तो फिर उसकी संपत्ति का उसी प्रकार से विभाजन नहीं होगा जैसे कि एक पुरुष की संपत्ति का होता है। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि वो संपत्ति उसने किससे प्राप्त की है, अपने पति से प्राप्त की है, अपने पिता से प्राप्त की है, या अपने ससुर से प्राप्त की है। इस आधार पर उस संपत्ति का विभाजन होता है। और यहाँ कुछ लोगों के मन में ये भी बात आती है कि जो महिला किसी परिवार में जन्म से संपत्ति की अधिकारी थी, उसकी यदि किसी वजह से मृत्यु हो गई तो उसके बच्चों का क्या होगा? क्या उसके बच्चे अपनी माँ का हिस्सा मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं? तो इसमें कहा गया कि नहीं, बिल्कुल मांग सकते हैं। वो बच्चे अपनी माँ का हिस्सा मांग सकते हैं, और इसीलिए जो मैं बताती हूँ कि जो प्रथम वर्ग सूची के जो हेयर है, जो एयर वारिस है, उन वारिसों की संख्या भी अब 12 से बढ़ा करके 16 कर दी गई है इस संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो अब यह भी स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यदि कोई पुत्री है और वो किसी वजह से नहीं रही तो उसका पुत्र भी, उसकी पुत्री भी अपनी माता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हैं। आगे जो प्रयास जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा कानून और समाज का संबंध हमेशा अन्योन्याश्रित रहता है, तो जो रीइटरेशन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है उस रीइटरेशन की सोसाइटी द्वारा किए जाने की आवश्यकता है, समाज के द्वारा मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है कि समाज में स्वीकार्यता बढ़े और वो इसको स्वीकार करें। तो दूसरी टैगलाइन क्या होगी? एक टैगलाइन से हमने अपनी बात शुरू की थी, इंश्योर इनहेरिटेंस नॉट डावरी। अब नई टैगलाइन होगी कि डोंट बी रिलक्टेंट, एक्सेप्ट इट, डोंट शो रिसेंटमेंट, इम्प्लीमेंट इट। मतलब आप ये जो नया निर्णय आया है उसके प्रति इतना उद्वेलित मत होइए, उसके प्रति इतना क्षोभ मत प्रदर्शित करिए, उसको स्वीकार कीजिए, उसको प्रवर्तित कीजिए, क्योंकि अंततोगत्वा ये समाज के ही हित का कार्य करेगा। और दूसरी बहुत जो महत्वपूर्ण बात है वो है जेंडर सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग ऑफ लॉ इन्फोर्सर्स। क्योंकि जो ग्रामीण समाज है जहां पर वो संपत्ति का ब्यौरा लिखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आते हैं और वही रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है कि जब भी वो जाएं तो उस परिवार का पूरा विवरण लें कि आपके परिवार में कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्रियां हैं, कितनी विवाहित हैं, कितनी अविवाहित हैं, और सबका नाम उस संपत्ति में चढ़ाएं। क्योंकि अगर यहाँ नहीं होता है, संपत्ति में नाम नहीं चढ़ता है, तो फिर समस्या आती है। तो ऐसे ऑफिसर्स को, ऐसे स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, उनको सेंसिटाइज करने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। और
जो मैंने कहा था कि वसीयत से तो कभी भी पिता किसी को भी कोई भी संपत्ति दे सकता था। तो एक ऐसे सेइंग है अदरवाइज कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, लेकिन मैंने उसको इस संदर्भ में आज के विषय के संदर्भ में ऐसे लिखा कि वेयर देयर इज नो विल देयर इज ऑल्सो ए वे, यानी अगर वसीयत नहीं भी किया है तो आपके पास रास्ता है, आप पैतृक संपत्ति के अधिकारी हैं और उसके लिए आप मांग कर सकते हैं। और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि इस विषय को तैयार करते समय मैंने जिन लोगों के आलेखों को पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तो पढ़ा ही पढ़ा, और इन लोगों की बातों को भी मैंने देखा, तो इनका भी नाम मैं अपने स्लाइड में डालना चाहती थी, क्योंकि किसी भी तरह से किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हनन नहीं होना चाहिए। और इतनी बातें हैं, और इसके अलावा अगर कुछ और बातें हो, कोई और प्रश्न हो आप लोगों के पास, तो आप पूछ भी सकते हैं। वैसे अमूमन जितने लोगों के मन में जो भाव है, वैसे भावों को संजोकर मैंने वो बातों का उत्तर देने की कोशिश अपने इस व्याख्यान में की है। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी मैम, जैसे आपने बताया कि कुछ जगहों पे शपथ पत्र पे बेटियों का सिग्नेचर्स ले रहे हैं, तो वो शपथ पत्र पे तो वैसे भी लोगों को मतलब प्रेशराइज करके बेटियों को साइन ले सकते हैं कई जगह पे, तो उसका क्या उपाय है? उसका उपाय बेटा यही है कि कानून में इस बात की स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाए कि जब भी इस तरह की बातें आती हैं, कोई लड़की अगर शपथ पत्र से अपनी संपत्ति का त्याग करती है तो उसे हम मान्यता ना दें, उसे हम खारिज कर देंगे। अगर ऐसी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये हक त्याग से अब काम करेगा नहीं, अब संपत्ति देना ही होगा। और इसके साथ जो मैं अपने स्तर पर जो मैं अपनी समझ रखती हूँ, तुमने जैसा शुरू में मुझे इंट्रोड्यूस किया तो बताया कि मैडम आत्मनिर्भर है, मैडम पढ़ी लिखी महिला है। बेटा ये ऐसी स्थिति है जिसको कि एक महिला को समझना पड़ेगा कि जो सशक्तिकरण आपको अपने अंदर से महसूस होता है वो कभी भी कोई दूसरा आपको प्रदान नहीं कर सकता। जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब आप शिक्षित होकर के अपने एक कार्य व्यवसाय को अपनाते हैं, नौकरी करते हैं, तो आप में एक अदम्य विश्वास झलकता है। फिर आप इतने सशक्त हो जाते हैं कि कितने ही अशक्त महिलाओं की मदद कर सकते हैं। तो वो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्रसार हो और वो एक सही दिशा में प्रयास हो। ऐसा ना हो कि हम भटक जाएं और अपने रास्ते से अलग होकर के चीजों को देखें। तो इस मंच से मैं ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि आप स्वयं में सशक्त बनने की बहुत कोशिश करिए। हो सकता है कि ये जो आर्थिक पर निर्भरता है वैसे ही समाप्त हो जाए, आप आत्मनिर्भर बन जाएं, और आप जब आत्मनिर्भर बन जाए, इतनी सक्षम हो जाए कि आपको लगे कि ये जो संपत्ति मुझे मिलने वाली है इसका तो मेरे लिए कोई महत्व ही नहीं। लेकिन ये सारी समय की बातें हैं, समय के आधार पर निर्णय होगा। लेकिन जिस महिला को जरूरत है, जो ग्रामीण समाज की महिला है, जो इसी एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर ही निर्भर करती है, उसके लिए जरूरी है कि वो इस संपत्ति में प्राप्त जरूर करे। और एक और बात स्नेहा मैं जोड़ना चाहूंगी। जी मैम। वो ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि भूमि विधियों का क्या होगा। तो जो उत्तर प्रदेश में स्थिति थी कि उत्तर प्रदेश में भूमि विधि में प्रावधान नहीं थे इस प्रकार के, तो अधिनियम ने तो कह दिया कि भूमि विधि मोहताज रहेगी और महिलाओं को अधिकार मिलेंगे। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश में संशोधन लाया गया और पिछली जुलाई 2019 में ये बहुत स्पष्ट हो गई कि अविवाहित महिलाएं कृषि योग्य भूमि में अधिकार प्राप्त करेंगी। लैंड रेवेन्यू एक्ट जो तुम्हारा था उसमें संशोधन किया गया। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बात रह गई कि विवाहित महिला को अभी भी छोड़ा गया है। तो अब यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, फिर भी वो अमेंडमेंट 2019 में हुआ, इतने वर्षों बाद हुआ, लेकिन उसमें भी विवाहित महिला को स्वीकार नहीं किया गया है। यानी अब फिर एक संशोधन की उम्मीद बन जाएगी कि विवाहित महिला कहेगी कि नहीं, मुझे भी कृषि योग्य भूमि में हिस्सा दिए, वहां पर परिवर्तन आए। तो हर समय जो प्रयास करते हैं आधा
अधूरा सा रहता है और एक आगे की लड़ाई के लिए गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। जी मैम, हमारे व्यूअर ने पूछा है whether the apex court has transgressed its jurisdiction by entering into the domain of legislature by giving effect the section 6 retrospectively or retroactively. हाँ, देखो ये जो बात आती है कि अधिनियम का निर्वचन, मैंने कहा कि जब भी आप कोई एक्ट बनाएंगे, अगर स्पष्टता नहीं होगी कि ये आखिर किस दिन से लागू होगा और विधायिका ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया, तो न्यायपालिका अपने आधार पर उसका निर्वचन करेगी। और ये निर्वचन 3 लगातार विवादास्पद केसों में देखा गया। जैसे आपका पहला केस जो फूलवती का केस था, उसमें कहा गया कि नहीं प्रोस्पेक्टिव होगा, तो प्रोस्पेक्टिव का भी न्यायपालिका ने दिया था कि हम इसको भविष्य के लिए रखेंगे। फिर अमर के केस में, दन्नम्मा वर्सेस अमर के केस में न्यायपालिका ने कहा कि नहीं रिट्रोस्पेक्टिव होगा। फिर आज के केस में पुनः न्यायपालिका कह रही है कि नहीं रिट्रोएक्टिव होगा। इसका मतलब है कि विधायिका जहां भी साइलेंट रहेगी वहां उसका निर्वचन कोर्ट अपने आधार पर करती रहेगी। इसको हम ट्रांसग्रेशन नहीं मानेंगे, इसको हम विधि के स्पष्ट प्रावधान का अभाव मानेंगे। मैम, इसमें जो हुई बेटी है उसका इस निर्णय उसका क्या इफेक्ट होगा? गोद ली हुई बेटी है क्या उसको बेटी का बेटा जो हाँ मैंने बताया ना, हाँ एडॉप्टेड। ये जो बात है एडॉप्टेड, आज के समय में दत्तक ग्रहण में पूर्ण अधिकार है जिसको हम ग्रहण करते हैं। लेकिन वो बेटी जो होगी दत्तक ग्रहण में ली हुई बेटी को अपने पिता के संपत्ति में जो उसका पिता है उसकी संपत्ति में तो वो वसीयत का अधिकार, वो उसको वसीयत करेगा, उसकी अधिकार ले सकती है, लेकिन वो पैतृक संपत्ति की सहदायिकी नहीं बनेगी, सहदायिकी उसको नहीं माना जाएगा। अभी भी ये स्थिति है। यानी आगे चल करके ये भी आ सकता है कि भाई अगर आप दत्तक ग्रहण में लड़की को ले रहे हैं तो हो तो गई वो आपकी पुत्री, तो चाहे जन्म से पुत्री हो चाहे दत्तक ग्रहण की पुत्री हो, उसको भी आप सहदायिकी बनाइए। जी मैम, यानी अभी भी बहुत से संशोधन की गुंजाइश है। जी मैम। Ma'am, do you feel that there should be a common civil code to provide the same benefit of right to property to non-Hindu daughters also? देखो एक केस था मैरी जॉय का केस, उसमें समस्या को उजागर किया गया था कि एक ईसाई महिला है, उसकी संपत्ति का डिवोल्यूशन का मामला जब आएगा तो क्या समस्याएं आई थी। उस संदर्भ में मैं ये कह सकती हूँ कि अगर किसी धर्म की कोई अच्छी बात है तो वो सभी धर्मों के लोगों के लिए क्यों न लागू की जाए, क्यों न हम उस चीज से शासित हो। लेकिन वैदिक विधि का मुद्दा इतना संवेदनशील है कि लोग इसको लेकर के बहुत ही रिजिड हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अगर समानता की बात करते हैं, हम एक रूपता की बात करते हैं, तो उसकी समाज में स्वीकार्यता होने की चीजें, अच्छी चीजों को स्वीकार करने में कहीं कोई बुराई नहीं है मेरी समझ से। जी मैम। मैम वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो बाकी के क्वेश्चंस हमारे पार्टिसिपेंट्स हमें मेल कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करने का। So now with that we have come to the end of today's extremely insightful session. Ma'am, we are extremely grateful to you for conducting today's session for Insights Bharat and its viewers. I thank you on behalf of Insights Bharat for providing your valuable insights on the topic and educating all of us about it. We hope to seek knowledge from you again, ma'am, on some other burning issue and important subject. Thank you so much, ma'am, for today's session. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.